हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत। आई एम फ्रॉम सीएनसी वेबल। आज मेरे साथ है कृति, जो ऑलरेडी सीएनसी वेबल से ट्रेनिंग ली है और ट्रेनिंग के बाद इनको प्लेसमेंट्स मिला है। तो आज उनके साथ हम डिस्कस करेंगे उनकी जर्नी किस तरह से रही सीएनसी वेबल में, ट्रेनिंग कैसा हुआ, प्रोजेक्ट कैसा हुआ, फिर उनका प्लेसमेंट्स और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो कंग्रेचुलेशन कृति, थैंक यू प्लेसमेंट्स के सर। लिए आपको। थैंक और यू, थैंक यू सर। आप बताओ कैसा रहा आपका जर्नी सीएनसी वेबल में। सर, पहले सीएनसी का पहले मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गई, कैसे ट्रेनिंग करना है, कैसे इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू में मुझे दिक्कत आ रही है, फिर कुछ टेंशन है, कम्युनिकेशन का कुछ दिक्कत आ गई। So after joining the CNC, I rectify all these things. Based on this, after the course, I cracked the interview, and I'm happy with the jobs. Right. ओके, तो आपने इंटरव्यू क्रैक किया तो कितने इंटरव्यू आपने अभी तक दिए थे? Actually, sir, after the course, within the 1 month, maybe it around 4 or 5 interviews. Within the 5 interviews, I cracked the interview, sir. ओके, और आपको नॉर्मली कितने राउंड हुए इंटरव्यू के लिए? Sir, first one is normally around 3 to 4 rounds, sir, based on the company. Maximum is 3 rounds. First, the HR one will call the call. The HR will take the introduction. After this, what is your skill set, and what are the projects you worked on, which projects you are work. So all these questions will ask the HR. Based on the HR, the next round will be technical round will be start. We will shortlist for the technical round. Suppose some companies have only one technical round, some other companies have 2 technical rounds. After these 2 technical rounds, there will be the managerial round. After that, HR round. This is a process. Some companies don't have the managerial round, 2 technical interviews based on their requirement. If it is emergency, they will take only 1 interview. HR round, technical round, and then final round. Salary negotiation, that round. Based on their requirement, emergency and requirement. तो अभी आपका जो प्लेसमेंट हुआ तो करंट पैकेज कितना मिला आपको यहाँ पे? अभी स्टार्टिंग मेरा है 6 लाख सर. प्रेजेंटली I got after hike I got around 7. और अच्छा, ये मुझे बताओ कि नॉर्मली क्या होता है, समटाइम स्टूडेंट्स को कुछ ये कंफ्यूजन रहते हैं, या जो खासकर फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं या फिर न्यूली क्लास जो ज्वाइन करते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? मान लो कि हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल राउंड में कुछ आप चेकलिस्ट बता सकते हो, 8-10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस नॉर्मली कि you have to prepare for crack that interview. So can you give me the list of the questions? Sir, first I will give the question, sir. My concern is first is we have to listen the daily classes carefully and practice very well. And what CNC give the interview questions after HTML topic is completed. CNC given some interview questions. We have to prepare that interview questions and some project. Also, you given some project too. We have to complete that project. Then we need move to the CSS. So based on every day we have to practice the questions and project. Then we will move to the interview. Without listening the classes, without the practicing, I need to attend the interview. I need to crack the interview. It's not possible, sir. Any course, either full stack or testing or anything. आपको क्या लगता है जो सीएनसी वेबल का जो सिलेबस है, कोर्स करिकुलम है, जो ट्रेनिंग है या प्रोजेक्ट है या असाइनमेंट्स जो दी जाती है या इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट दिए जाते हैं, जो टॉप एमएनसी कंपनी की लिस्ट दिए जाते हैं, अगर अच्छे से स्टूडेंट्स पढ़ाई कर ले तो इंटरव्यू क्रैक करना उनके लिए कितना आसान है? 100% सर, 100% क्रैक होता है सर. आपका फर्स्ट HTML का ईच टॉपिक है. ईच टॉपिक होने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स. इस होने के बाद आप कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं. मैडम और सर कुछ आंसर्स देता है. फिर आफ्टर के बाद कोई असाइनमेंट्स देता है. असाइनमेंट्स में कुछ डाउट्स है तो आप क्लियर करते हैं एनी टाइम 24/7. वो टाइम है 12 to 1 वो नहीं है. इंटरव्यू का अलग टाइम है, कुछ नहीं. 24/7 मुझे पूरा सपोर्ट मिला है CNC से.
और इसके बाद असाइनमेंट से पूरा HTML का टॉपिक होने के बाद में एक प्रोजेक्ट दिया है, वो भी कंप्लीट किया। प्रोजेक्ट करेंगे तो हमको बहुत डाउट्स आता है, बहुत डाउट्स होते हैं, वो क्लियर होता है हमको क्या क्या है। ये प्रोजेक्ट में करेंगे ना सर, वो प्रोजेक्ट से हम इंटरव्यू क्वेश्चंस आता है, वो लाइव प्रोजेक्ट है। कंपनी में कैसे होता है ये प्रोजेक्ट वैसे ही था। सो हमको इंटरव्यू का सारा टॉपिक, सारा डाउट्स क्लियर होता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो आपने सपोज 5-6 इंटरव्यू आपने दिया, तो उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट ऑफ द कंपनी पूछते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द कंपनी पूछते हैं सर HTML एंड HTML5 का डिफरेंस क्या है, प्रीवियस वर्जन का करंट वर्जन का क्या है, HTML के क्या क्या एलिमेंट्स ऐड किया है नॉर्मली सर। उसके बाद लोकल सेशन, लोकल एंड स्टोरेज सेशंस का डिफरेंस क्या है, कुकीज का लोकल सेशन स्टोरेज का डिफरेंस क्या है, नॉर्मली ये HTML से पूछता है। HTML5 पे अब इनपुट फील्ड्स पे रिक्वायर्ड का आ गई, डेट का आ गई, वो क्या क्या फील्ड्स ऐड हो गई वो उसको पूछता है। अभी CSS पे आ गए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉक्स मॉडल, व्हाट इज बॉक्स मॉडल, ये है। सम प्रॉपर्टीज देता है, इनपुट बॉक्स सम एग्जांपल देता है, एक इनपुट बॉक्स देता है, उसके बाद उसके अंदर टेक्स्ट है, मुझे 5 स्पेस देने के बाद मुझे टेक्स्ट आना है, इनपुट टेक्स्ट आना है, कैसे लिख सकते हैं आप। नॉर्मली पैडिंग दे देंगे तो वो टेक्स्ट स्टार्टिंग से पैडिंग 5 पिक्सल दे देगा, तो पैडिंग लेफ्ट 5 पिक्सल दे देगा तो वो टेक्स्ट लेफ्ट पे आता है, लेफ्ट टू राइट पैडिंग। तो वैसे क्वेश्चंस पूछता है CSS पे। फिर वो एब्सोल्यूट पोजीशन, एब्सोल्यूट रिलेटिव क्या है, स्टिकी का क्या है, पिक्सल का, रेम का, EM का डिफरेंस क्या है, परसेंटेज का, व्यू विड्थ, व्यू हाइट का डिफरेंस क्या है। नॉर्मली ये CSS क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस। देन कमिंग टू द जावास्क्रिप्ट, मेनली डेटा टाइप्स पूछता है, देन कंस्ट्रक्टर्स पूछता है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, हाउ मेनी टाइप्स वी कैन इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स, वो पूछता है। और इसके बाद होइस्टिंग क्या है, फंक्शंस को क्या क्या फंक्शंस है, नेमिंग फंक्शंस है, एरो फंक्शंस है, फंक्शंस का अलग अलग मॉडल्स होता है, उसको क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, एनोनिमस फंक्शंस क्या होता है। फिर ES6 का मॉड्यूल्स होता है इसका, ये क्या है हमको, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, प्रोमिसेस, फंक्शंस के अंदर मॉड्यूल्स होता है, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का यूज क्या है, किस वजह से यूज करते हैं, प्रोमिसेस का, सेट टाइम आउट का। प्रोमिसेस में कुछ क्वेश्चंस पूछता है, क्वेश्चन लिखेगी, इसके अंदर कंसोल लॉग लिखेगी क्या क्या है, स्टेप 1 का आउटपुट क्या है, स्टेप 2 का आउटपुट क्या है, कुछ प्रोग्राम लिखेगी, कुछ प्रोग्राम देता है। नॉर्मली ये ओरल क्वेश्चंस ये। उसके बाद हमको jQuery पे आता है, jQuery पे कुछ क्या नॉर्मल क्या काम करते हैं jQuery यूज करके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। इसके बाद जावास्क्रिप्ट में कुछ ये वैलिडेशंस, फॉर्म वैलिडेशन कैसे लिखता है, वैलिडेशंस का पार्ट क्या है, वैलिडेशन के क्यों जरूरी है। अभी वैलिडेशन पे रेगुलर स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स का कम कुछ रेगुलर पार्ट होता है ना, कैरेक्टर एडिटर, वैसे स्प्लिट का क्या है, स्ट्रिंग टू एरे को कैसे कन्वर्ट करता है, कंकैटिनेशन कैसे करता है, पूरा स्लाइस का डिफरेंस क्या है, सारा टॉपिक सब पूरा क्वेश्चंस पूछते हैं। ये नॉर्मली सब इंटरव्यू में होता है जावास्क्रिप्ट तक, यही है सर। जितना क्वेश्चंस आपने बताया, आपके क्वेश्चंस बताने से मुझे समझ में आ गया कि आपने कितना अच्छे से पढ़ाई की है। क्योंकि सच बताता हूँ कि अपने यहाँ पे अभी मंथ अराउंड लाइक 60-70 बच्चे प्लेस्ड होते हैं। हाँ, और अगर आप YouTube पे भी देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे कनेक्ट होते हैं, समटाइम्स स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं होते हैं, कुछ कंपनी की पॉलिसीज हो जाती है, कुछ अपना सर फोटो देते हैं, फोटो के सर अपने में प्लेसमेंट डाल दो,
इंटरव्यू हम नहीं देंगे वैसे भी। Yes, तो sir. जितना डिटेल में आपने बताया ना, नॉर्मली लोग 8 to 10 क्वेश्चन बता देते हैं। अब देखा Hmm. जाए तो मोर देन आई थिंक 25-30 क्वेश्चन आपने बता दिए जो मोस्ट है। यस सर, यस सर। तो मुझे डेफिनेटली मेरा कंपनी पे प्लेसमेंट हुआ सर, मुझे 5 राउंड से 5 राउंड से। फर्स्ट HR राउंड है, देन आफ्टर टेक्निकल राउंड है 1 घंटा, 1 घंटा दूसरा है, सेकंड टेक्निकल राउंड है वो भी 1 घंटा है, उसके बाद थर्ड मैनेजरल राउंड है, एक ही घंटा है। उसका मेरा रेटिंग भी अच्छा दिया है इस पे। बेस्ड ऑन से मैं मुझे क्या हुआ है, ये CNC का रूल्स फॉलो किया मैं। करेक्ट है। एक्चुअली हम लोगों का मेन मोटिव क्या क्या रहता है कि बच्चे प्लेस्ड हों, लेकिन मैं बताता हूँ कि कुछ 70-80% बच्चे करते हैं, और जो 20-30% जो बच्चे होते हैं ये फॉलो नहीं करते हैं। उनका रीजन क्या होता है कि आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, वो लोग जंप करते हैं इधर से उधर, आधा इधर पढ़ा आधे कहीं और पढ़े, और फिर बाद में कंपैरिजन करना शुरू हुआ ये चीजें। क्योंकि जो हम लोगों का जो सिस्टम बनाया गया है वो जॉब लेने के लिए बनाया गया है कि यस ट्रेनिंग यस हो, सिस्टमैटिक प्रोजेक्ट पे वो काम कर ले, इंटरव्यू के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इंग्लिश के जो सेशंस होते हैं, जेडी होता है, डिबेट होते हैं, तो वो सब में क्या होता है, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाते हैं, मॉक इंटरव्यू कॉन्फिडेंस यस बिल्ड होता है। और सर। बहुत फर्स्ट लोग कॉल बताओ ना। नहीं, आप बताते हो। हाँ, अभी इंग्लिश का होएगा तो मुझे एक पॉइंट आ गया सर। इंटरव्यू पे इंग्लिश का हमको फ्लुएंट आना जरूरी नहीं, लेकिन वी हैव टू कम्युनिकेट ईच अदर। नॉर्मली इन कंपनीज में क्या होता है सर, अभी बोल सकते हैं नहीं, वो बोल सकते मुझे पता नहीं, लेकिन बोल रही हूँ ये स्टूडेंट्स के लिए। नॉर्मली इंग्लिश का मुझे हम कम्युनिकेशन होना जरूरी था। मतलब अभी हमारा मदर से बात कर रहे हो, क्या है मेरा हमारा लैंग्वेज मदर को पता चलता है, इसलिए इजी से कम्युनिकेशन होता है। कंपनीज में क्या होता है, वो लोग हमको नहीं पता है, हम कोलिग्स को पता है, लेकिन क्लाइंट्स का हो क्या है हमको पता नहीं। उसको अंडरस्टैंड होने के लिए हमको इंग्लिश जरूरी था, यही है फर्स्ट पॉइंट। सो वी हैव टू लर्न इंग्लिश एंड टॉक इन इंग्लिश, इट्स नेसेसरी। अच्छा, आपका मदर टंग कौन सा है? मेरा मदर टंग तेलुगु सर, आपका तेलुगु? आंध्र प्रदेश। यस। और फिर जब आपने इंग्लिश का प्रिपरेशन करना शुरू किया जब, तो उसके लिए आपने क्या सब काम किया जिससे कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा हुआ? एक्चुअली इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए एक ही तरीका है सर, वी हैव टू टॉक, दैट्स इट। हमारे CNC पे एक इंग्लिश का सेशन होता है डेली, कभी किया डेली इंग्लिश सेशन है, वो हम सेशन को अटेंड करना है, उसके बाद करना है। सो हमको फियर निकल जाता है हमारे मन से। कभी कभी सर हाँ, मुझे पहले हिंदी नहीं इतना आता है, लेकिन आई कम्युनिकेट विद द पीपल, either right or wrong, we have to talk confidently. That's thing we need to do. नहीं, ये तो है कम्युनिकेशन से। जैसे अभी आपने स्टार्ट में बताया कि सर मुझे हिंदी नहीं आती है, Yes sir. तो आप संभाल लो इंटरव्यू में। तो वही चीज है ना कि जब बोलेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीजें आ जाती है। Easy आता है सर। आप जो है मीन्स हिंदी नहीं आती है, फिर भी हम लोग हिंदी में पढ़ाते थे, आपने ज्वाइन Yes. किया, उससे बेनिफिट Yes. हो कि आपको जॉब मिल गया, तो दैट इज Yes. यही एफर्ट्स है कि चलो जो Yes. नहीं हो सकता था वो चीजें आपने करके फिर आप प्लेसमेंट्स की तरफ आप आगे बढ़े। Yes yes sir. नॉर्मली CNC पे पूरा हिंदी में होता है, बिकॉज ऑफ द लोकल स्टूडेंट्स के लिए आप पूरा करिकुलम डिजाइन किया, राइट सर। सो पूरा हिंदी में होता है, सो लोकल स्टूडेंट्स आर एवरीवन, सो इजी होता है, वी कैन फॉलो द रूल्स एंड, मतलब रूल्स का मतलब स्ट्रक्चर इजी कर सकते हैं। जस्ट वी हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ द CNC, practice very well, then we have then mock interviews be there. So some institutes are not given the mock interviews. Mock interviews very helpful to the students. तो एक्चुअली हम लोग हिंदी में क्यों ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि हम लोग पास ऑप्शन भी है कि सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाने के लिए, क्योंकि जितने भी ट्रेनर हैं वो सारे इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, लेकिन हिंदी में पढ़ाने का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट वो सब कुछ समझ पाए, उसके बाद वो सामने Yes. में इंटरव्यू में जाए तो वो कैसे भी बोल सकता है। एक बार जब उसको अच्छे से Yes. सेट हो गया माइंड में कि ठीक है ये लॉजिक है, ऐसा प्रोग्रामिंग है, तो इजी हो जाता है। और यही रीजन है कि हम लोग का जो ट्रेनिंग है वो हिंदी में होता है, Yes. ताकि वो कोई भी लैंग्वेज में वो अपना बता सके। जैसे मान लो कि अगर आपको कोई तमिल मिल जाए, तेलुगु मिल जाए, बंगाली मिल जाए,
उसको पता है तो कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वो इंटरव्यू दे सकता है। अगर कोई सामने इंटरव्यू सामने वाला Yes, रीजनल लैंग्वेज में ले सकता है, तो ये रीजन है कि हिंदी में हम लोग का ट्रेनिंग देने का। exactly sir, that's a very good idea sir. हम्म, अभी मेरा मदर टंग तेलुगु है सर। तेलुगु में बात करेंगे तो मुझे बहुत आसान होता है, अंडरस्टैंड इजी होता है, बिना इंग्लिश एंड हिंदी। yes, इंग्लिश हिंदी आता है लेकिन मेरा मदर टंग ही हम्म। इतना ही नहीं सर। एक और मैं पूछना चाहूंगा कि जो गाइडेंस, मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है जो अभी क्लास कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए अगर आपको कुछ गाइड करना हो कि प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए, कुछ चेकलिस्ट मान लो कि 4 5 10 जो भी आपके मन ओके में हो कि ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा, तो आप क्या गाइड करोगे ताकि उनके लिए, जैसे आपने कोर्स कंप्लीशन के 1 मंथ के अंदर आपको जॉब मिल गया, राइट? यस यस तो आपने ऐसा क्या सब किया जो लोग जल्दी आपको जॉब मिल गए, और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को जल्दी जॉब मिल जाएगा, तो आपका क्या रहेगा गाइडेंस? यस। फर्स्ट पॉइंट सर, फर्स्ट एचआर राउंड में क्या होता है, फर्स्ट हमको सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछेगी। फर्स्ट वन, आफ्टर सेल्फ इंट्रोडक्शन क्रैक होती है कि तो वो सेटिस्फाई होता है, हमको टेक्निकल राउंड पे जाएगा। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखो, क्या क्या पॉइंट्स में बोलना है इस पे। We have to write what are the points we need to tell to the HR or any person, not a HR or any person. First, they will ask the technical. So after writing, you have to practice. Open a Zoom meeting. You need to record your session, and after that you can check the video. क्या होता है, फर्स्ट टाइम वी रिकॉर्डिंग द सेशन, सम इतना जल्दी नहीं आता है। सो 1 hour 2 hours daily 1 hour we have to prepare self introduction. So whenever they ask the word, tell me about yourself, then we automatically already हम practice किया, so easily आता है हम। ये फर्स्ट पॉइंट। ये होने के बाद हमको टेक्निकल राउंड, सो ये इंटरव्यू फर्स्ट रन हो गई हम। नेक्स्ट टेक्निकल राउंड, इसके बाद क्या क्या टेक्निकल क्वेश्चंस सीएनसी का पूरा देता है। उसके बाद हमको ये प्रैक्टिस होने के बाद गूगल में सर्च करना है, यूट्यूब पे देखना है, सिर्फ क्वेश्चंस कैसे पूछता है बस। हमको क्या है, स्टिकी नॉर्मल का, हाँ नॉर्मली क्या है, स्टिकी का फिक्स्ड का डिफरेंस क्या है वो पूछे। इसको आंसर क्या आता है, फिक्स्ड का फिक्स देता है, स्टिकी का स्टिकी देता है, वैसे नहीं बोलना। स्टिकी का क्या होता है, सम विड्थ होने के बाद हम स्टिकी होता है नॉर्मली, ये बोलना पड़ता है उसका। नॉर्मल ये क्वेश्चंस नहीं, विद एग्जांपल देना पड़ता है, वैसे प्रिपेयर करना। अभी हम जावास्क्रिप्ट में क्या है, नल का अनडिफाइंड का डिफरेंस क्या है बोलते, नल भी एम्प्टी है, अनडिफाइंड भी एम्प्टी है, लेकिन वैसे नहीं बोलना है ना, इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, वो देखना पड़ता है। वी हैव टू प्रिपेयर ये क्वेश्चन सीएनसी का क्वेश्चंस। उसके बाद और हम क्वेश्चन आंसर दे देंगे तो इंटरव्यू नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ता है, सेम क्वेश्चन वैसे बोलना पड़ता है। कुछ भी इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं वैसे ही प्रिपेयर किया, यही है सर। आपका कहना यह है कि जो भी क्वेश्चन है तो आंसर 1 वर्ड या 1 लाइन में नहीं देना है, उसको एलाबरेट करना है, एक्सप्लेन अच्छे से करना है। तो हाँ, सामने वाले शॉर्ट को फॉर्म से एलाबरेट विद एग्जांपल्स देना पड़ता विद एग्जांपल, तो हम एग्जांपल के साथ देते हैं तो सामने वाले को मौका नहीं मिलता है कि कुछ और पूछने का। है। यस यस सर, तो वी क्वेश्चन से बच जाते हैं। हाँ, टाइम मिलता है हमको, क्वेश्चंस नहीं पूछेगी, उसको सब पता। हाँ, वो ये स्टूडेंट्स को सब पता है इसी बारे में। सो वी नो नीड टू आस्क द अनदर क्वेश्चन विद द सेम टॉपिक। यही है। ये बहुत अच्छा टिप्स है, अगर स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस कम हो जाएंगे उनके पास। हाँ, फिर अभी तीसरा पॉइंट क्या है, अभी फर्स्ट इंटरव्यू हो गई, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है वो लिखना पड़ता है, फिर प्रिपेयर करना। अभी दूसरा इंटरव्यू वो फेल हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम डिप्रेस नहीं होना है। वी हैव टू मोटिवेट अवरसेल्फ, वी हैव टू मोटिवेट अवरसेल्फ एंड प्रिपेयर वेल, यही चीज है। सेकंड इंटरव्यू है, सेकंड इंटरव्यू पे क्वेश्चंस पूछेगी, सो 50% यही क्वेश्चन से पूछता है मैक्सिमम। अभी वो 50 वो भी क्रैक नहीं होएगा, ये क्वेश्चंस लिखना है, क्या क्या कॉमन है, क्या क्या डिफरेंस है, कैसे पूछा है डिफरेंस से, एक क्वेश्चंस पूछना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है, फिर वो क्वेश्चंस को प्रिपेयर होना पड़ता है।
क्या इंटरव्यू है, इंटरव्यू क्या कंपनी है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है, सब इंटरव्यूज का क्वेश्चंस पूछना। अभी 10 इंटरव्यू होने के बाद सेम क्वेश्चंस रिपीट होता है। देखा जाए तो 70-80% क्वेश्चन सारे कंपनी में सेम ही होते हैं। यस ओनली प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकता है कि कोई कंपनी डिफरेंट डिफरेंट वे से उसको पूछे, लॉजिकल हाँ क्वेश्चंस डिफरेंट हो, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो सेम ही रहता है। सर, इंटरव्यू में क्या होता है ना, सम कंपनीज डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, सम क्वेश्चंस इनडायरेक्टली पूछते हैं सेम टॉपिक, लेकिन इनडायरेक्टली पूछता है। हमको ए नॉलेज आना जरूरी है, इसलिए क्लासेस का डेली क्लासेस वो लिसन करना है, डेली हम प्रैक्टिस करना। डायरेक्टली पूछेंगे तो अभी 10 क्वेश्चन सर मुझे हमको पता है ये क्या है पता, लेकिन वो इनडायरेक्टली सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लमैटिक है। इसमें वो इंटरव्यूअर का कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए इजी होता है। अभी हमको प्रोजेक्ट में कैसे पूछेगी हमको पता नहीं, क्लाइंट को क्या फीचर चाहिए तो हमको पता नहीं है, इसी फीचर से वो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है इसी हिसाब से काम करते हैं हम कंपनी पे। सो आइडियोलॉजी जरूरी था, यही है। अच्छा, आपका कृति गैप भी था, तो आपको जब गैप हो गया एकेडमिक गैप, तो आपको क्या लग रहा था कि जॉब मिल जाएगा आसानी से? सर पहले मुझे बहुत डर लग रही सर, गैप मुझे नहीं बोले, लेकिन बहुत गैप है मेरा को। लेकिन पहले मुझे इतना डिप्रेशन हो गई, सीरियसली बोल रही, मेरे को शादी हो गई, 2 बच्चा, 2 लड़की अभी नहीं मेरे को। मेरा हस्बैंड आपका देखा है कभी जा रही थी, ये सीएमसी आप ज्वाइन करो, मैं बात किया है, वो अच्छा करिकुलम है, वो बोला है, मैं ज्वाइन किया। आपके हिसाब से मैं पूरा फुल मेरा 100% भी दिया, 100% होने के बाद वो पूरा का कोर्स कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट हो गई, इसके बाद इंटरव्यू आ गई सर। मुझे अभी भी पता है सर, इंटरव्यू के टाइम पे एक डाउट आ गई मुझे, नेक्स्ट मैनेजरल राउंड एक क्वेश्चन पूछे कि कैसे, ये अराउंड 11:45 नाइट आपको फोन किया मुझे, आप मेरा डाउट क्लियर किया। कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता है यही सपोर्ट। मुझे याद है सर अभी तक याद है 11:45 PM। यस देखो, मेनली यही चीजें हैं कि क्या होता है कि जब हम ट्रस्ट करते हैं कोई भी चीज पे, और जब हम खुल के बात करते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम है, शेयर करो, तो डे एंड नाइट, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बुरा नहीं होता है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है या फिर कंपनी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी कंपनी चलाया है तो चाहता है कि प्रोडक्टिविटी हो, अच्छी से लोग ट्रेनिंग करें। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है पॉजिटिवली नहीं होके निगेटिव में चले जाते हैं। अगर वो फोकस अगर पढ़ाई पे करे, जो डाउट है, जो प्रॉपर जो चैनल है, ट्रेनर से पूछो, एचआर से पूछो, अभी जैसे प्लेसमेंट्स की टीम है, जैसे उनसे आप इंटरव्यू से रिलेटेड आप बात करो, तो ऑटोमेटिक सब हर चीज का सॉल्यूशंस मिलते हैं। मुझे याद है कि शायद आपके हस्बैंड जो है सबसे पहले मुझसे ही बात किए थे। यस सर, यस। तो उन्होंने सारी चीजें बताया, मेरे ख्याल से हाफ एन आवर के आसपास मेरी बात हुई थी बिफोर एडमिशंस। और फिर जाके उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अपने वाइफ से डिस्कस करके फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर जाके उन्होंने कंटिन्यू किया। यस यस सर, यस। लेकिन और एक बात है सर, वो सॉफ्टवेयर नहीं है वो अलग है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर पसंद आ गई। एक्चुअली जो हम लोग का जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देके प्रोजेक्ट करा के प्लेसमेंट्स करते हैं, तो वो इसलिए इस तरह का बनाया गया है कि कोई भी लोग इसमें ऑनेस्टी के साथ अगर 4 से 5 घंटे भी अगर पढ़ाई करे, तो डेडिकेशन के साथ, तो आराम से ट्रेनिंग लेके प्लेस्ड हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर चीटिंग करना शुरू करेगा, आज क्लास हुआ है और मैं 2 दिन बाद प्रैक्टिस करूंगा, 1 सप्ताह बाद प्रैक्टिस करूंगा, तो कुछ लोग का रहता है कि वीडियो तो मेरे पास है ही, मैं बाद में वीडियो से पढ़ाई कर लूंगा। फिर उसको जो है ना, वो 3 महीने का ट्रेनिंग 6 महीने लगेगा, और 6 महीने का जॉब में 1 साल लगेगा उसको करने में। सही है सर, इसलिए बोल रहे हैं सर, आपका होने के बाद एक क्लास होने के बाद असाइनमेंट्स देता है, वो भी प्रैक्टिस करने के बाद ये क्लास का पूरा डाउट्स क्लियर होता है। उसके बाद पूरा एक टॉपिक क्लियर होने के बाद आप प्रोजेक्ट देता है,
प्रोजेक्ट का टाइम से बहुत डाउट्स मिलता है, बहुत डाउट्स, कैसे करना है, ये करना है, सारा डाउट्स क्लियर होता है। सो हमको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी प्रोजेक्ट्स के अंदर ही क्लियर होता है, हमको प्रैक्टिकल नॉलेज आता है। सो प्रोजेक्ट जरूरी था, जरूर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि सीएनसी में आप आए तो आपको ऐसे क्या क्या, मतलब सीएनसी ज्वाइन करने के लिए जो आपने सोचा नहीं था, जिस तरह का सपोर्ट मिलेगा। नॉर्मली जैसे सोचते हैं कि इंस्टीट्यूट है, पढ़ाई करके हम निकल जाएंगे, जॉब मिलेगा Yes. देख लेंगे। तो आपको सीएनसी ज्वाइन की तो आपको मतलब क्या, मतलब कौन कौन से बातें सीएनसी की आपको अच्छी लगी? सर फर्स्ट मेरा क्या है, करियर गैप है मेरा, करियर गैप है, ये मुझे बहुत डर है, उसका प्लेसमेंट होता है नहीं होता है। और उसके बाद सब्जेक्ट ठीक है, इतना नहीं है, और इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारा डाउट्स मेरा है, सारा डाउट्स है। क्या है, इन सीएनसी के ज्वाइन होने के बाद डे 1 से आप क्या बोला वैसे ही किया, सब स्टूडेंट्स को वैसे ही करेंगे तो पक्का प्लेसमेंट मिलता है। और दूसरा क्या है, मॉक इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज जरूरी था, बिकॉज अभी आपके साथ इंटरव्यू हो गई, फिर आपकी तरफ से दूसरा इंटरव्यू होता है, फियर नहीं होता है बोलने का। अभी एक क्वेश्चन पूछता है, आप क्वेश्चन को कैसे आंसर देना पड़ता है, हमको आराम से आता है। आप बोलेगी एक गलत है, वैसे नहीं बोलना है, वैसे बोलना है, आप 2-3 टाइप्स बोलता है हमको, राइट सर। सो हमको प्रैक्टिस मिलेगी इंटरव्यू को। अभी उसके बाद बेस्ट इन सीएससी इज ग्रुपिंग, सही है ना सर, आप 4-5 लोगों को ग्रुपिंग करें, ये मुझे बहुत प्लस हो गई। हम क्या करेगी, 5 आदमी पूरे लड़कियां हैं, हम क्या करेगी, एक आदमी के एक टॉपिक है, सब प्रिपेयर करेगी, एक क्वेश्चन उसको पूछता है, ये क्या है, कैसे करना है, क्या किया है, ऐसे करेंगे तो क्या है। आपसे बात करेगी तो फ्रेंड से बात अलग तरीका होता है, ये पूरा एडवांटेज हो गई। उसके बाद मुझे 1 महीने के अंदर प्लेसमेंट हो गई मेरा। तो मतलब जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया, वो सिस्टम को आप 100% फॉलो किए, यस कंप्लीशन yes, से 1 महीने के अंदर ही आपको प्लेसमेंट हुआ, मतलब ये यस रीजन यस है। यस सर, 100% सर। तो यही था जो आपका जो है, जो भी आपने बताया, मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट होगा, कैसे ट्रेनिंग लेनी है, कैसे प्रोजेक्ट करनी है, इंटरव्यू देने, बहुत सारे आपने क्वेश्चंस के लिस्ट भी दिए हैं, और आई होप कि इससे स्टूडेंट्स सबको बेनिफिट मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच कृति कि आपने टाइम दिया, आपने गाइड किया, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड करियर। इन फ्यूचर कभी भी कुछ भी लगेगा तो वी आर ऑलवेज देयर। इसमें कि आपका कोर्स हो गया है और जॉब मिल गई है तो नहीं, कभी भी लगेगा वी आर ऑलवेज देयर। थैंक यू सर, आई नीड योर सपोर्ट ऑलवेज सर।